We now know a little, just trying to tell a little about Honorary Captain Yogendra Singh Yadav, who hails from Yadav family in Uttar Pradesh, joined the Indian Army at the age of 16 years and 5 months. He got enlisted in 18 Grenadiers as a part of Gatak Force Commando Platoon with the task of capturing the Tiger Hill, which made him a hero at the age of 19. He is the youngest recipient of Paramveer Chakra Award. He served army till 2021. Hit by a bullet in the forehead, another on the hip, with 15 bullets in his body, and not able to stand. He promised to himself that he would not die. We have that proud son of the soil of Bharat Mata, Honorary Captain Yogendra Singh Yadav, to share his experiences and challenges faced during the 1999 Kargil War. Ladies and gentlemen, let us join our hands for an applause and hear from the hero about his thrilling experiences and who faced the Pakistanis face to face and gave us Tiger Hill Top, one of the crucial points of our boundary. Shri Yogendra sir, we request you to please share your thoughts. परम आदरणीय तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी, दक्षिण भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल अरुण जी, हमारे मंच पर मंचासीन परम आदरणीय अतिथिगण और इस गुरु नानक कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और एनसीसी के छात्र और छात्राओं, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज आपके सम्मुख उन वीरों की, मां भारती के सपूतों की वो दास्तान, वो शौर्य गाथा, वो पल बताने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरे सम्मुख 1971 के वो वार वेटरन्स, वो योद्धा बैठे हुए, उन सबको मैं नमन भी करता हूं और वंदन भी करता हूं। मैं एक किसान और जवान का बेटा हूं। आज आपने ये चित्र देख रहे हैं, परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र में से ग्रेनेडियर्स के 3 परमवीर चक्र हैं। और आज मेरे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेरे सम्मुख बैठे हैं, जैक्रिफ के वीर योद्धा 71 वार के वीर चक्र सर आप बैठे हैं। आप तो वो वृक्ष हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान और इस हिंदुस्तान की सेना की वो नींव रखी। हम तो एक छोटी सी डाली हैं आपके लगाए हुए पौधे की। कोशिश किया कि जो आपने रास्ता बनाया, जो आपने एक नींव रखी, उसको मजबूती दे दें। उसके ऊपर थोड़े से लहू के छींटे अगर दे करके मां भारती के आंचल को सुरक्षित रख लें तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात हुई। पिता से 65 और 71 का युद्ध की दास्तानों को सुना था कि किस तरह से जब फौज हमारी लाहौर तक पहुंच गई थी 71 में, तो उन्होंने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था। पिता बताते थे कि खाना नहीं मिलता है, पीना नहीं मिलता है, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ साथियों की लाशें होती हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। बच्चे थे आपकी तरह, तो एक जिज्ञासा होती है
कि पिता सही बोल रहे हैं, बिना खाए बिना पिए कैसे चल सकता है एक इंसान। आपका कर्नल रेजिमेंट आपका अनुवाद करेगा। जय हिंद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದಿ தெரியுமா தெரியாத? தமிழ்ல சொல்லணுமா எல்லாம்? ఓకే, ఐ వాంట్ డూ ఇట్ ఇన్ తమిళ్ బికాజ్ ಎಲ್ಲರಿಗೂ తమిళ్ తెలియదు. తెలుగులో చెప్తారు, అందరికి అర్థమైతే కదా తెలుగు? అర్థం కదా? కన్నడ కొత్త? సో విల్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ఆనరరీ captain and the highlight of my regiment, the Grenadiers, began his speech. He began by thanking everybody on the stage, thanking the college for its function, thanking all of you all for coming. He then went on to pay homage to the war veterans of 1971 who are sitting here. He made particular reference to a gentleman who's wearing a cap there. Sir, will you please rise? Yeah, put your hands together. Put your hands together. Okay, ladies and gentlemen, that for you is Colonel Krishna Swamy, who was awarded a Veer Chakra in the year 1971 in Bangladesh, what is now Bangladesh. So the honorary captain went on to say, thank you for your service. And he went on to say, it is people like you who've sowed the seeds of the foundation that is India today. And in all modesty, he said, I am but a little twig of the tree that you were. That is the modesty of this man. सर, मैं पिता से वो कहानियां सुनी थी, लेकिन किताबों में पढ़ा था CQMH अब्दुल हमीद की कहानी कि हिंदुस्तान का एक सैनिक अकेला पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें के ऊपर निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। मैं कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ मेजर होशियार सिंह की को कि बसंतर के युद्ध में एक कंपनी कमांडर, हिंदुस्तान के 120 जवान पाकिस्तान की फौज को बता देते हैं कि इनमें कितनी क्षमता है, इतनी सक्षमता है, 2 बटालियन को वापस उल्टे पैर लौटने पर विवश कर देते हैं। So he says that when he was a child, he grew up listening to the story and reading of the stories of many war heroes, but he mentions 2 in particular. It is a matter of great pride for me and for us that both the names he's taken are from our regiment, that is the Grenadiers. But let me tell you those 2 stories. The first is of Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid. Yeah, this is. The first is Company Quartermaster Abdul Hamid, who single-handedly, in a jeep and a recoilless gun, destroyed 8 Pakistani tanks. He was in the process of destroying and engaging the 9th one when he succumbed to the numerous injuries that he faced. His tank and the RCL gun, ladies and gentlemen, is still housed in our regimental center in Jabalpur. The second is the story of Brigadier then Major Hoshiyar Singh Paramveer Chakra of the 3rd Battalion, the Grenadiers, who along with his company of just 120 people stopped more than 1,600 soldiers of the Pakistanis. He is our 2nd Paramveer Chakra, this is our 3rd. मैं कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ कैप्टन बाना सिंह की को, जिसने -50 डिग्री टेम्परेचर में कैद पोस्ट को कैप्चर किया और आज सियाचिन ग्लेशियर के अंदर बाना पोस्ट के नाम से जानी जाती है। ऐसे शूरवीरों की कहानियों को जब पढ़ करके बड़े होते, मन के अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है। जिस तरह से आप ये देश का यूथ सुन रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे भी मैं भी सुन करके पढ़ करके एक जिज्ञासा जागृत हुई कि मुझे भी इस देश की सेना का एक सिपाही बनना है। और वो देशभक्ति का जुनून, वो राष्ट्र प्रेम न जाने कब जागृत हुआ और मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में जब 12th क्लास का छात्र था, अभी हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं दे पाया था, तब मैं भर्ती होकर के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में चला गया। एक साल की ट्रेनिंग किया। जिस तरह से आप अब
स्कूल कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो फ्यूचर की चुनौतियों को सामना करने के लिए है, आपके कैरियर को बनाने के लिए वो एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी भारतीय सेना भी, एक सिविलियन जब बच्चा फौज में जाता है भर्ती होकर के, उसको 9 महीने की आग की तप्त भट्टी में डालता है। वहां जो इंस्ट्रक्टर, जो टीचर्स होते हैं, वो अपनी स्किल से, अपनी क्षमता से, सक्षमता से 9 महीने तक उसको तराशते हैं और 9 महीने के बाद एक सिविलियन बच्चा एक फौजी के रूप में बाहर निकल करके आता है। वो कुंदन बन जाता है उसका शरीर, और जब उसके इस कुंदन शरीर के ऊपर ये वर्दी धारण करता है तो वो वर्दी कोई मामूली वर्दी नहीं, बल्कि वो लाखों सैनिकों के खून से संचित होती है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा होती है, और तिरंगे की आन बान और शान होती है, जिसके लिए वो पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो वर्दी पहनने के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया, और फिर 1 साल तक अपने यूनाइटेड इन ग्रेनेडियर्स के साथ, अपने कमांडिंग ऑफिसर, कंपनी कमांडर, अपने प्लेटून हवलदार, सेक्शन कमांडर और जो हमारे साथी थे, उनके साथ मिलकर के जो 1990 से कश्मीर वैली के अंदर जिहाद की जो आग चली आ रही है, जो हमारी फौज उन पाकिस्तानियों से, उन घुसपैठियों से लड़ती चली आ रही है, उस लड़ाई में हिस्सा लिया, बहुत कुछ सीखा, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वर्ष 1999 आ गया। Okay. So in addition to the 2 Paramveer Chakras, he also grew up listening to the story of Honorary Captain Bana Singh. Because of Bana Singh's actions, today, ladies and gentlemen, the Siachen Glacier is with us. At minus 50 degrees centigrade, Chennai la konjo male vandaka, all of you all wear a sweater and a balkalava. This is minus 50 degrees centigrade we are talking about. He single-handedly assaulted the feature and captured it. It is called Bana Post today. That is why the Siachen Glacier is with India today. Inspired by stories like this, at the age of 16 years and 5 months, 16 saal 5 mahine, yeah, he was in his class 12. Ungallam quarterly exam, half yearly, pre-final, enlamo test irkulla. So class 12, he had not even given his half yearly exam. Where inspired by these stories, he decided to join the army, and to our good fortune, he was trained in Jabalpur at the Grenadiers Regimental Center and joined the 18th Battalion, the Grenadiers. He says that a young boy from the fabric of society like you comes to a regimental center and is thrown into the crucible, into the furnace, that is the training component of the Indian Army, and 31 or 9 months later is born the soldier who wears the uniform which I so proudly wear today. He went on to say, this is not a piece of cloth. This is a uniform which is burnished by 130 bola aapne? Yeah, by about 130 million Indians. It is burnished by the strength and the power of the veterans who have shaped our country. This is nation building at its best. What he probably wanted to say is this is iron. This is a bulletproof vest which we wear with pride, which he wore for so many years with dignity. That was 1990. He went to the Kashmir Valley and he began his career by actually fighting insurgents and terrorists in Kashmir. And then he brought us through to 1999 when Kargil happened. And वर्ष 1999 में आएगा। अभी देश और सेना को भी नहीं पता था कि ये वर्ष क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो बखूबी जानते थे कि अब दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी से पूरी मानवता का विनाश हो सकता है,
इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया। लाहौर बस यात्राएं हुई, समझौता एक्सप्रेस किया ताकि मानवता जिंदा रहे, दोनों मुल्क तरक्की करें। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के बीच शांति हो। उन्होंने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर जहां सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, हमारा एक समझौता था कि सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल हो जाएंगी। हमारी सेना विड्रॉल हो गई, लेकिन वो विड्रॉल नहीं हुए और उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर नई बटालियन को रेज किया और उन तमाम बटालियन को उन चौकियों के ऊपर, उन पहाड़ियों के ऊपर बहुत भारी स्ट्रेंथ के साथ वहां पर डिप्लॉयड कर दिया। उनका इरादा था, जब अभी आप कभी कश्मीर घूमने के लिए जाएं श्रीनगर टू ले, तो एक जोजिला पास पड़ता है, तो वहां से नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले उसको कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को कब्जा करना चाहता था। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके -20 डिग्री टेम्परेचर में उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन उस समय कश्मीर वैली के अंदर थी। हमें भी दराज सेक्टर में भेजा गया। दराज सेक्टर में सबसे पहली जो चोटी के ऊपर फतेह करने का हमें टास्क मिला वो थी तोलोलिंग टॉप। वो पहाड़ी जो आप अभी मूवी में, न्यूज में अगर देखते हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल वॉर मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी वो तोलोलिंग टॉप था। उस पहाड़ी को फतेह करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद उस पहाड़ी पर हमला शुरू किया। उस पहाड़ी पर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा और 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब सेकंड राजरिफ और 18 ग्रेनेडियर्स के संयुक्त अटैक के साथ 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। Some things I think you understood because jazba, emotion speaks. I think you felt the emotion which he conveyed. But I'll tell you in very short. The Kargil conflict happened because of a breach of faith. So Pakistan and India, like he said, had an agreement that in the winter when the temperatures dropped to about -60 degrees centigrade, both the countries would come down, withdraw from the mountain peaks. We kept that part of the deal, those people didn't. He went on to say those people didn't. They came up to the tops of the mountains and sat there, but they forgot that this is the land of India. This is Hindustan, where soldiers are made of steel and fire. So he goes on to say his battalion was deployed in Jammu and Kashmir at that time and they were given a task to capture the area of Tololing. So I recommend to you, please Google the Kargil War Memorial and look at the Google map around and see how high the mountain tops are. So they were given the task of capturing the feature of Tololing. Tiger Hill is part of that. So 22 days and 22 nights, ladies and gentlemen, the battle raged. In that battle, our battalion lost 2 officers, 2 JCOs, who are also very, very senior Jawans, and 21 Jawans. This is the sacrifice in all of 22 days by 1 battalion. So our battalion, that is 18 Grenadiers,
and the 2nd Battalion, the Rajputana Rifles, which is another infantry battalion, together culminated this attack and captured the area of Tololing. This was 12 June, on the 12th of June 1999, है ना? एक के बाद एक टास्क मिलना शुरू हुआ, क्योंकि अभी जीत का मोमेंटम बन गया था। हिंदुस्तान की फौज ने जो अपने अपने टास्क थे, ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। नीचे वाली पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज का कब्जा हो चुका था। अभी जो हाइट थी अभी भी दुश्मन के पास थी। तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, जो कि 17,000 फीट ऊंची थी, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, उस पहाड़ी के ऊपर भी फिर कब्जा करने का हमारी बटालियन को सौभाग्य मिला। और वहां बटालियन कमांडर ने दोबारा से युद्ध नीति, रणनीति बनाई कि घातक प्लाटून को सबसे पहले उस पहाड़ी के ऊपर हमला करना है। मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, उसकी पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से है। मैं कोई धरती पर विशेष शक्ति लेकर के पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान था। पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन पहुंचाना। 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे, और उसी काम से पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ, और तभी हमारे एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की कमान दी गई। हाइट्स बहुत ज्यादा थी, दुश्मन दूर से दूर हमें देख करके आसानी से बर्बाद कर सकता था, इसलिए रात का सहारा लिया ताकि अपने मूवमेंट को छुपाया जा सके। 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 23 साल हो गए हैं। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत होता था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। तो जो इंसान चलेगा तो आवाज तो होगी, पत्थर भी फिसलेंगे। पत्थरों की आवाज, हमारी आवाज, शायद वो सो रहे होंगे, एकदम से जगे। दोनों तरफ से ऐसे फायर खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। तो 7-8 मीटर कैसे प्लेन स्पेस था, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, और वहां पर उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी, बम्बारमेंट शुरू हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि सर एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं। कभी अगर सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिला हो तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं होते।
So I'll start with the last part. That's the most important part. He says, if you've had the privilege, the honor, the opportunity of seeing the mortal remains of a fallen soldier, you will see that the bullet injuries are in front on his chest, never on his back. So he also said, at the beginning he said, you are known not by who you are. And this is for you kids. You are not known by who you are known by what you do. So it doesn't matter where you come from, what you have, what educational qualifications you bring, how tall you are, how good looking you are, how strong you are. It is what you do. If you work hard and give everything 100%, this nation will get built. That is what he said. So he was a normal Jawan. In the first 12 days of battle, he was just another Jawan in 18 Grenadiers. His task was very simple. For the soldiers fighting on the heights in Tololing, he had to ferry ration and ammunition. He did that day in, day out, without a break. That operation was a success. The commanding officer looks at this young Jawan, and then he realizes there is something in him. There is some fire in his belly, and therefore I have to use him in what we call the Ghatak platoon, which is like the commando platoon. They are the flagship of a battalion. So he gets deployed to the Ghatak platoon, which then gets the task of capturing Tiger Hill, which was at 17,200 kuch? 17,000. Yeah, about 17,000 feet. And I must tell you, when you go on a holiday and when you go to Kashmir or when you go to Sikkim or you go to the mountains, when you go to Yerkad, you don't have to go anywhere else. You go to Yerkad, you go to Red Hills, and then you say, Rumba height, I can't breathe. At 17,000 feet, there is probably 20% of oxygen in the air. To take one step is difficult. They had to scale a cliff face which was close to 90 degrees. कितने लोग चले थे जब साथ पहुंचे? So 21 Jawans of his battalion began the assault on that virtual 90-degree cliff. 7 reached the top, where there were 2 bunkers, and they destroyed those bunkers and killed every Pakistani soldier that was in those bunkers. That is where I paused him, because I had to convey this to you. उनके बंकर को अपना बंकर बनाया और उन्हीं बंकरों से 5 घंटे तक हम ये सातों जवान लड़ते रहे। आपने मूवी के अंदर देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि हिंदुस्तान के जवान के अंग कटते हैं, लेकिन अंग की परवाह नहीं करता, बल्कि वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। 40-50 पाकिस्तान के जवानों ने हमला किया। मेरे एक एक साथी जख्मी होने लगे, शहीद होने लगे। मैं उस पलों को जरूर आपको शेयर करता हूं। मैं भी जख्मी था, मेरा साथी मेरे सामने बैठा था, वो मुझे फर्स्ट एड करने लगा पॉलीथीन फाड़ने के लिए। उसका हाथ यहां तक गए, यहां पे गोली लगी और इधर से भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। मैंने देखा कि मेरा एक साथी बगल में बैठा हुआ, ट्रेनिंग का साथी, दोनों रूममेट थे, उसको सर सीने में ब्रस्ट लगता है और यहां से छाती से, फेफड़ों से खून की फुवारें छूटती हुई जाती हैं, और वो भी मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी खड़ा होकर के फायर करने लगता है, वहीं पर आरटी का बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है और गर्दन ऐसे उछलती है, लेकिन उसके धड़ 2 कदम तक चलता है और फिर वो गिर जाता है। इस तरह के पलों को जीते जीते मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कैप्टन था, कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के गोलियां मारने लगे,
तो मैं बेहोश नहीं हुआ था, तब तक होश में था। तो जब हमारे जवानों की बॉडियों में गोली लगती थी, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। जब उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। तो मैं इस तरह से पड़ा हुआ था, उसने फर्स्ट में यहां पर गोलियां मारी, पैर में गोली मारी, तो मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर बहुत अमानवीय क्रूरताएं उन्होंने की। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, सब कुछ बड़ा सहता रहा। फिर काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनके जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तब तक मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख खड़ा हूं। उन्होंने आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी और 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, वापस मुड़ा। उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद उसने मेरी उस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो ऐसे पर्स रखा था यहाँ पर, क्योंकि पैंट फट गई थी पत्थरों में चल चल करके। उस पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, वो भी शायद इकट्ठे हो रखे होंगे। जब गोली चली तो जाकर के वो सिक्कों पे टकराई। उस गोली के धक्के से मुझे भी लगा यार मैं तो मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जब हथियार उठाया मेरा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड हुड के अंदर जा गिरा। और जब तक वो हुड से ग्रेनेड को निकाल पाता, उस पाकिस्तानी जवान का यहां से पूरा सर फट गया और वो हमारे ऊपर आ गिरा। पाकिस्तान के दूसरे जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि हड्डी पूरी निकल करके बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला इस हाथ का। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है, और वो वहां से भाग खड़े हुए। मैं चल तो सकता नहीं था, रेंगता हुआ, खिसटता हुआ, फायर करता हुआ जब 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया तो मैं देखता हूं सामने उनका तो लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। मैं नौजवान साथियों, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं, सबकी अपनी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेनाएं उन राष्ट्रों से अलग है। और अलग इसलिए है क्योंकि अगर दूसरे देश के 10 जवानों की एक टुकड़ी है और उसमें से 3 शहीद हो जाएं तो 7 भाग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 10 आदमी की टुकड़ी, उसमें से 9 शहीद हो जाते हैं, तो 10वां भी अपनी मातृभूमि के लिए वहीं पर शहीद हो जाता है।
वो कभी पीछे की तरफ नहीं भागेगा, वो वहीं शहीद होता है। वो वहां से भाग गए। सर बहुत देर तक उनको देखता रहा, जब वो खाली होगी चोटी तो फिर, क्योंकि वो भागते हुए हमारे नीचे एक एमएमजी पोस्ट था टाइगर हिल की बगल में, मस्को वैली, जहां उनका बेस कैंप था। उन्होंने वहां सेट पे मैसेज दे दिया था कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। बस जहन के अंदर पागलपन था कि अपने पोस्टों को बचाना, अपने साथी को बचाना है। धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने उन साथियों तक आया। मुझे लगा कि सर इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, ना तो उम्र का तजुर्बा था ना सर्विस का अनुभव था। चारों तरफ लाशें ही लाशें, पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला। तो मैं नौजवान साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब अगर आपने आस्था और विश्वास के साथ किसी कर्म को, किसी कार्य को करते हैं, तो परमात्मा की शक्ति आपके कर्म में निहित हो जाती है, समाहित हो जाती है। रात को ये भी, अभी तो ये भी पता नहीं कि रात को किन रास्तों से ऊपर चढ़ कर के आई, कहां नीचे कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं पता था। हाथ में असहनीय पीड़ा होने लगी, इसको ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा कि कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। ये तब होता है मेरे नौजवान साथियों, इंसान का एक शरीर नहीं होता, इंसान के 3 शरीर होते हैं। जो आप देख पा रहे हैं स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कर्ण शरीर है। और जब हम उस आध्यात्म, अपने विचारों को, अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल होता है, और हमारा माइंड से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। इसलिए हमेशा सांसों को कंट्रोल करने की शिक्षा को ग्रहण जरूर कीजिएगा। वो सांसों के कंट्रोल से ही आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। तभी वो शक्ति, उन्होंने एकदम से आवाज दी, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, तब अपने साथियों को सूचना दी कि ऊपर हमारे इतने जवान शहीद हो गए, अभी इधर हमला होने वाला है। कमांडिंग ऑफिसर साहब को सूचना दी। उन्होंने भी लास्ट में यही पूछा कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी बेयर, ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट 72 घंटे में 2 जवानों ने खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। उस समय तक मन के अंदर एक ही विश्वास, एक ही भाव, सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, लेकिन मन के अंदर एक ही विचार था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। तभी फिर ऐसे कहते कहते डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी बटालियन ने, हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरी बटालियंस ने, कारगिल युद्ध का बिगिनिंग हुआ और एंडिंग भी हमारे ही उससे हुआ। तोलोलिंग से शुरुआत किया और टाइगर हिल के ऊपर कारगिल का युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद मैं भी श्रीनगर से दिल्ली रेफर हुआ, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल और 5 दिन की सेवा करके सेवा निवृत्त हुआ हूं।
लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। The last line is the most important. And I'll start with the last one. What do I do? He said, I may have retired from the army. I don't wear a uniform anymore, but I have not retired from my duties to this nation. That is nation building. I'll tell you a few things about what he said. At that place where those two bunkers were, there were 7 of them. Above them were the Pakistani posts, which had about 150 Jawans. While they were figuring out what to do, which is a typical way we conduct operations, 40 or 50 of them attacked. He talked of how he was already injured by then. So somebody was giving him first aid, and in front of him, that person was shot, and the blood burst out of his lungs and drenched him. He's seen that. How old was he? 21 years old? 19 years old. 19 vayase. Look at that. He's seeing somebody whose head gets blown off. Following that, the 40 or 50 Pakistani soldiers come down and fire at this mass of human beings mindlessly. Now, typically what happens when you fire a burst into a human being or an organic body, that body will jump. That is the nature of bullet injuries or bullet firing. So he's seeing his men, his comrades getting shot and jumping, and he's lying there. He's already injured. So the Pakistani soldiers come and their officer tells them, Sabko goli maro. Nothing brutal about it. This is war. So in that firing, he also gets injured. He keeps quiet, maintains his calm, till he finds an opportunity, lobs a grenade when he finds he has no choice. That grenade gets caught in the hood of one of the soldiers, Pakistani soldiers, and that guy loses his head. What happens in a time like this, in dark, ladies and gentlemen, is panic. He was only one soldier, and there were probably 150. But panic can work magic or can cause disaster. In this case, it caused disaster. So in the chaos that ensued, he eventually managed to find his way down. 500 meters down a nala, till when he contacted the rest of the members of 18 Grenadiers. Conveyed a message to them that the Pakistanis are retreating because they're unable to believe that it is one person. They think that the Indian army has attacked and they vacated. That is what he said. Most armies in the world, out of a team of 10 men, if 3 die, the rest of the 7 will run. He said in the Indian army, if 9 people die, the 10th will stand up and fight. That is what he said. He doesn't remember much after that, except when the commanding officer asked him, Bete, kya chahiye aapko? What is it that you want? What does the Jawan want? He says, Saab, I need ammunition to fire that weapon. Field patti bola. Field patti is first aid dressing. A band-aid and bandage cloth is field patti. I need that to bandage my wounds. I need the ammunition to fire my weapon. I don't want food. He talks of how between the two of them, they ate half a packet of Parle-G glucose biscuits for 3 days and 3 nights. That is the Indian soldier for you. He epitomizes it the best. थैंक्स। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। ये IMCTF जो टीम है, इनके तमाम अधिकारी पदाधिकारी, और इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वर्दी पहनने से सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, लेकिन हम सब विचारों से सैनिक बन सकते हैं। अगर हम विचारों से सैनिक बन गए तो ये राष्ट्र अपने आप सशक्त, समृद्ध और एक पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि ये युवा इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, और ये राष्ट्र के उपयोग में, राष्ट्र के निर्माण में अगर ये लगती है तो राष्ट्र की तकदीर बदल जाती है, राष्ट्र एक नई दिशा पे चला जाएगा। हमारा एक विचार होना चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, और मैं आपकी उस सोच को इन शब्दों में कहना चाहूँगा। और आखिर में मैं आप सबको पुनः हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ये सांसों के तराने
हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। I think the least you can do is to stand up and give him a round of applause.